اسٹیج پر رونق افروز معزز و موقر علماء کرام، شعراء اسلام، ائمہ مساجد، محفل نور میں تشریف فرما تمام خوش عقیدہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین الذي اختص بالخلق العظيم وجرى هذه النصوم إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين الذين قاموا بنصرة الدين القويم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في مقام أمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة نطفي بها حذر وائل الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ۔ میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا، میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا، پر میرے تیور و کردار مثالی رکھنا۔ میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا، پر میرے تیور و کردار مثالی رکھنا۔ اور خاک نے میری اللہ سے مانگی یہ دعا، ہر آدمی مٹی سے بنایا گیا، خاک نے میری اللہ سے مانگی یہ دعا، رنگ جیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا، رنگ جیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا، رنگ جیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا۔ اور تقاضا وقت کا ہے خالد و زرار بن جاؤ، خدا کے واسطے تم دین کی تلوار بن جاؤ، نہ اس کو پھانک پائے پھر کبھی اسلام کے دشمن، تحفظ کے لیے تم آہنی دیوار بن جاؤ، تحفظ کے لیے تم آہنی دیوار بن جاؤ۔ مچل کے محبت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پہلی بار آج آپ کے اس بیان محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو اللہ اسے قبول فرمائے۔ آپ نے شام سے لے کر کے اس وقت تک تقریر بھی سماعت فرمائی اور اچھے اچھے اشعار بھی سماعت فرمائے۔ میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، اور نہ میں کوئی بہت لمبا چوڑا مقرر ہوں، اور نہ میں لچھے دار گفتگو کرنا جانتا ہوں۔ چند ضروری اور اصلاحی باتیں جو مجھے درسگاہ سے حاصل ہوتی ہیں وہی میں اسٹیج پر لے کر کے آ جاتا ہوں، اور صرف قوموں ملت کی اصلاح کرنے کی غرض سے چند باتیں لے کر کے میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ حضرت علامہ رضا اللہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ ان کا بڑکپن ہے کہ انہوں نے اب تک مجھے استاد مانا ہے، اور یقیناً نیک لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، من علمنی حرفا، جس شخص نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، سیرنی غلاما، اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ اگر وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے، اور اگر چاہے وہ تو مجھے بیچ دے۔
یہ مولا علی مشکل کشائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اور یقیناً نیک اور صالح شاگرد کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اپنے استاد کی وہ ہر وقت اور ہمہ وقت عزت اور تعظیم کرتا رہتا ہے، اور چاہے جتنا بڑا ہو جائے بہرحال وہ اپنے استاد کی عزت کرتا ہے. اور رہا حضرت علامہ رضا اللہ صاحب قبلہ کا حال، تو یقیناً انہوں نے میرے پاس تقریباً 1 سال پڑھا ہے شرح وقایا اور شرح جامی وغیرہ جیسی کتابوں کو. لیکن جس وقت یہ ادارے میں آئے حال یہ تھا کہ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ 16-17 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے درسگاہ سے لگے ہوئے، ہزاروں میرے شاگرد ہوں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آج تک اتنا ذہین و فطین شاگرد میری درسگاہ میں کوئی نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایک ایک جملے کو اور ایک ایک لفظ کو نہایت غور و فکر سے سوچ سمجھ کر کے، اور حقیقت تو یہ ہوتی تھی کہ پورا سبق یہ خود حل کر کے آتے تھے، مجھے صرف نشاندہی کر دینا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ یہ وہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے پہ ناز کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ پہ ناز کرتے ہیں. مثلا مجھے ناز ہے کہ میں الجامعہ الاسلامیہ روراہی سے فارغ ہوں، سبحان اللہ. مجھے ناز ہے اپنے اساتذہ پر جنہوں نے بڑی محنت و مشقت سے مجھے تعلیم دین سے علم دین سے مجھے سنوارا اور میرے سینے میں علم دین ٹوٹ ٹوٹ کر انہوں نے ڈالا. سبحان اللہ. تو دنیا میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مدرسہ پہ ناز ہوتا ہے، بڑے مدرسے سے فارغ ہو گئے، نام کے آگے جامعی لگا دیا، مصباحی لگا دیا، کچھ لگا دیتے. ناز ہے انہیں مدرسے پر اور ناز ہوتا ہے اپنے استاد پر، مگر مولانا رضا اللہ کی شخصیت وہ ہے کہ انہیں مدرسے پر اور اساتذہ پر ناز نہیں، بلکہ مدرسہ اور استاد ان پر ناز کرتے ہیں، سبحان اللہ ان پر ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ انہیں سلامت رکھے اور جن کی محنتیں اللہ قبول فرمائے. اور مجھ جیسا گناہگار تو بڑے فخر سے یہ کہتا ہے زکریا کے دامن میں نیکیاں ہو یا نہ ہو، لیکن اتنے طلبا کو میں نے پڑھایا اور اللہ نے چاہا تو زندگی کے عظیم لمحے تک پڑھاؤں گا. ایک بھی بچہ اگر آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اسی کی وسیلے سے یہ زکریا بھی مقبول ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. رسول اللہ. شنیدم کی در روزے امید و دین بدارا ببخشت بنے کا کریم. اللہ انہیں نیکوں کے صدقے میں کسی نیک کا ساتھ دے دے گا، بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور میں تمہید اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو ادھر ادھر نہیں لے جانا چاہتا، چند کام کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ سے سننا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. آؤ ذرا دیکھو، یہ عرس پاک کا موقع ہے. حضرت عمر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کا موقع ہے. بولیے آئے گا. اور مدرسہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور آج یہ درسے کی صدارت کر رہے اور ہمارے عزیز القدر عزیز حضرت حافظ و قاری زبیر صاحب سلمہ، جو بچپن سے میرے پاس رہے اور بڑی انسیت و بڑی محبت مجھ سے کرتے تھے. اور ان کے حوالے سے میں نے عتیق بھائی کو جانا اور ان کے چچا وغیرہ کو جانا، تو بڑے دنوں سے میں عامی پور کا نام سنتا تھا. دل میں خواہش تھی کہ کبھی تو عامی پور پہنچتا، لیکن واقعی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ دل کی بات مقبول ہوئی اور آج میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا. اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو عرس کا موقع، دوسرے یہ شاندار مدرسہ. سبحان اللہ. تو کئی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ محفل بڑی متبرک ہے
اور میں پریشان ہوں کہ عنوان کون سا منتخب کرتا. میں نے حضرت علامہ رضا اللہ صاحب سے پوچھا, حافظ زبیر صاحب سے پوچھا کہ بھی بولا کیا جائے, کیونکہ یہاں تو کوئی رٹی رٹائی گفتگو ہوتی نہیں ہے. حالات ماحول جیسا ہوتا ہے. شہر اسلام اظہر بھائی بیٹھے ہیں پرتاپ گڑھی, بہت سے جلسوں میں جاتے رہتے, میری ملاقات ہوتی رہتی, بڑے محبتی ہیں. یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری جو گفتگو ہوتی ہے وہ دستگاہی انداز میں ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حالات کیا ہے, ضرورت کیا ہے. تو جانتے ہو مسلمانوں, آج پوری دنیا میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے. یہ ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں ہمیں آج کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ آپ کو غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا آخر کیا چیز ہے جو اس دور میں سب سے ضروری ہمارے لیے ہے. غور کرتے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں, آپ ہندوستان میں آپ کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 25 کروڑ میڈیا بتاتا ہے. بولیے, میڈیا کے لوگ بتاتے ہیں, اخباری رپورٹ یہ بتاتی ہے, سرکاری گنتی اور تعداد یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی میں 25 کروڑ مسلمان پایا جاتا ہے. کتنے پائے جاتے ہیں؟ 25 کروڑ. یعنی اگر 5 حصے کرو تو 1 حصہ آپ ہو ہندوستان میں. مچل کے بولو سبحان اللہ. صرف ہندوستان میں 25 کروڑ, اور پوری دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ. کتنے لوگ ہیں؟ 1 ارب 60 کروڑ. مگر حالات کیا ہیں؟ آپ کہیں بھی سرکشت نہیں ہو. بولو, کہیں محفوظ نہیں ہو. ہر وقت آپ کو ایک ڈر لگا رہتا ہے, ایک خوف لگا رہتا ہے. نہ جانے ہمارے ساتھ کیا حالات ہو, نہ جانے ہمارا انجام کیا ہو, نہ جانے ہمیں کس مصیبت کو جھیلنا پڑے, نہ جانے کون سی پریشانی سے ہمیں جوجھنا پڑے. ہر وقت آپ الجھنوں کے شکار بنے رہتے ہو. اور اس کا ترا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بدماشی اور شرارت سے تمہیں ڈرانے کی ناپاک کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ ابھی الیکشن کے پیریڈ میں آپ نے سنا ہوگا, ہماری بولی بولو ورنہ ہندوستان چھوڑو. بولو, یہ بات تھی کہ نہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ 25 کروڑ ہو ہندوستان میں اور اس طرح کی دھمکیاں تمہیں مل رہی ہیں. تم بتا دو کہ ہم کوئی پڑا ہوا سامان نہیں ہے کہ کبھی بارڈر کے اس طرف کر دو, کبھی بارڈر کے اس طرف کر دو. ہم اس ہندوستان میں جزوے جو کبھی الگ نہیں ہو سکتے. اگر ہندوستان سے ہم الگ کرو گے تو ہندوستان کی شناخت مٹا دی جائے گی اور ہندوستان کی پہچان. ہمیں وہ ہے کہ جن پر آدمیت ناز کرتی ہے, ہمارے دم سے دنیا میں صداقت کے اجالے ہمیں پھینکو گے. سوچو, لیکن ایک ڈرانے والی بات ہے, یہ نہیں ہے. گھبرائیے گا نہیں, گھبرا تو نہیں رہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. ڈرانے کی بات, لیکن اے مسلمان تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے ڈرنا نہیں چاہیے, تجھے تو بے خوف رہنا چاہیے. مچل کے بولو سبحان اللہ. بے خوف رہنا چاہیے. ارے ڈرنا ہی ہے تو دنیا کی مخلوق سے مت ڈر, خالق کائنات سے, دنیا کے بنانے والے سے ڈر. سورج, چاند, ستارے, 18,000 عالم کو پیدا کرنے والے سے ڈر. اس کا خوف سینے میں رکھ, اور اگر اس کا خوف سینے میں رکھے گا تو دنیا والوں کو بتا دے گا ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو, ہمیں نہ چھیڑو کہ ہم آگ ہے جلا دیں گے. ہمارا حق جو چھینا گلا دبا دیں گے, اور ہم سے محبت سے رہنے دیجیے ہم کو, ورنہ آپ کی جنت کربلا بنا دیں گے. خدا کا خوف جو سینے میں ہوگا تو آپ دنیا کو یہی پیغام دو گے, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بولی بولے, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی زبان بدل دیں, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا انداز فکر بدل دیں, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی سوچ تبدیل کر دیں,
दे दोगे, हमें धमकी मत दो, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यूरोप की वादियों में दूजी अदा हमारी, थमता न था किसी से फैले रवा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। धमकी देते हो, चले जाओ, छोड़ दो, याद रखो हिंदुस्तान में गरीब नवाज अली रहमा का आस्थाना है। नकल के हमें हिंदुस्तान में हजरत उमर शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। हिंदुस्तान में सैयद सालार मसूद गाजी की चौखट है। हिंदुस्तान में मसूद अशरफ समनानी की बारगाह है। हिंदुस्तान में 14वीं सदी के मुजद्दिद मुहाफिज़े सुन्नियत आला हज़रत हाज़िर बरेलवी अलैहि रहमा की चौखट पाई जाती है। हम यहाँ से ताल्लुक रखते हैं और एक खलीफ नवाज 40 मुसलमान चटाई और मुसल्ला वही है उनका हथियार, आ गए अजमेर की सरजमीन पे, बैठा दिया था तुम्हारे राजा के ऊंट को, बैठाया था राजा के ऊंट को। इतिहास भूलो नहीं, इतिहास याद रखो। राजा के ऊंट बैठाए, ये बताओ वो ऊंट किसके थे, खाजा के थे या राजा के थे? तो सब बोलोगे कि खाजा के नहीं राजा के थे। मैंने कहा बैठाया किसने, कहा खाजा ने बैठाया। मैंने कहा उठे क्यों नहीं, जब गुलाम जब ऊंट राजा के थे, राजा के सिपाही लग गए, ऊंटों को मारा जा रहा है मगर ऊंट उठ नहीं रहा है, ऊंट अपनी जगह जो छोड़ नहीं रहा है, ऊंट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। गोया ऊंट ये कह रहा है अगरचे हम मिल्कियत है राजा की मगर गुलाम है खाजा के, है खाजा के, एताज गुजार है खाजा के। तुम अगरचे हमें उठाओ, हम उठने वाले नहीं हैं जब तक राजा का हुक्म न पाएंगे। पूरे राजा के सिपाही लग गए मगर खाजा के बैठाए हुए ऊंट न उठा सके। दुनिया वालों, हिंदुस्तान के लोगों, हमें तो हबीब मत समझो। जिस गरीब नवाज ने तुम्हारे राजा का ऊंट बैठाया था, तुम्हारी उस वक्त की हुकूमत लगी थी तो ऊंटों को न उठा सकी थी। किसी दादा ने नहीं बताया है बल्कि हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज ने बताया है। हम यहाँ के मुसलमानों को लेकिन सवाल बड़ा अजीब है। ये तो जज्बाती बात है, मैंने माइक पे कह दिया, बोलो है कि नहीं, वरना डर का तो हाल वो है। अरे छिपकिली देखा तो डर गए, बोलो लोमड़ी देखा तो डर गए, बिल्ली देखा तो डर गए, कुत्ता देखा तो डर गए। कितने डरपोक हो गए हुए। और किसी किसी का तो हाल ये होता है अपनी मर्दानगी भूल जाते हैं घर में। एक साहब की शादी हो गई देहात में, अब तो देहात में बड़ी तरक्की हो गई कि घर में लोगों ने पखाना बनवा लिया, वरना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी देखी जाती हैं। पखाने के लिए शाम का वक्त होता है, चाहे दामाद हो चाहे बहू हो, लोटा उठाया गांव के बाहर, होता है कि नहीं। हम कहते हैं घर ना बनाओ, घर के अंदर ये जरूरी चीजें जरूर बनवा दो। हुकूमत की इमदाद को मोहताज मत रहो। तुम इतने गिर चुके हो कि हुकूमत के टुकड़ों में अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। अगर तुम वो हो कि तुमने तो समंदरों में भी राहें निकाल दी है और तुमने तो पहाड़ों से भी सलामी कबूल कर ली, पहचानो अपने आप को। तो ये चीज जरूरी होती है। तो मैंने कहा मारे डर के आदमी अपने आप को भूल जाता है। तो वहां एक बेचारे की शादी हो गई, बड़ा पहलवान था, बड़ा ताकतवर था, लेकिन उस गांव में जब वो गया, शाम का टाइम हुआ, तो अब अपनी बीवी से उसने कहा ऐसा है कि मुझे कुछ जरूरत है, हाजत है, जाना है। तो उसने कहा अच्छा, घर में तो कोई इंतजाम नहीं है, लालटेन ले लेते हैं, ले लीजिए और ये पानी ले लीजिए, खेत में चले जाइए। बाग से होके जाना था। आमीपुर के जब मैं करीब पहुंचा
تو جناب عزیزم شعبان صلی سے میں نے کہا بیٹا اس گاؤں کا نام عامی پور کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ سمجھ میں آ گیا. جدھر دیکھو آم کا باغیچہ نظر آ رہا ہے، یہاں آم کثرت سے پایا جاتا ہے، اسی لیے شاید اس گاؤں کا نام عامی پور رکھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ ادھر بھی گاؤں کے بغل میں بات تھا، بات سے ہو کے جانا تھا. تو کہنے لگا دیکھ بھائی میرے کو بڑا ڈر لگتا ہے، تو ساتھ میں چل. کہا ٹھیک ہے میں پیچھے پیچھے لاتے لیکن تو آگے آگے چل. اب وہ آگے آگے پیچھے پیچھے بیوی لاتے لیکن تھوڑی دور چلا، اتنے میں ڈر کر کے چوک پہ کہتا ہے ڈر کر کے، اور گھومتا ہے بیوی کے قریب آ کے رکتا کہتا ہے جلدی سے کسی مرد کو بلا. کہا کیا ہوا؟ کہا سانپ دکھ گیا. تو بیوی نے پیچھے سے کہا ارے آپ بھی تو مرد ہے. کہا ہمارے ڈر کے میں بھول گیا تھا کہ میں بھی مرد ہوں. ہمیں ایسا ڈرنا کہ اپنا مرد ہونا بھول جائے. مسلمانوں تم ہو کیا؟ ان جانوروں سے ڈرتے ہو. تمہارے اسلاف کا دستور تھا کہ جب جنگل کا شیر بھی سامنے آتا تھا تو ڈرتے نہیں تھے اور کہتے تھے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو شیر آ کر کے تلوے چاٹنے لگتا تھا، شیر آ کے تلوے چاٹنے لگتا تھا. سبحان اللہ، چاٹنے لگتا تھا. اور دیکھیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بوستا میں ایک حکایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوی دمدر سے رود بار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار ازا ہول ازا ازا ہول بر ازا ہول بر ازا ہول بر حال کن بر نشیش کہ ترسی گنم پائے رفتن بدر. کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو رودبار کے جنگل سے میرے سامنے آ گیا چیتے پہ سوار ہو کر. کس پہ؟ ایسا خوف میرے اوپر طاری ہوا کہ میرا پیر مارے خوف کے زمین میں گر گیا، میں چلنے سے آگے آگے رہ گیا. اب اس شخص نے جب مجھے ڈرتا ہوا دیکھا تو کہا کیا کیا؟ تبسم کنا دست برلت گرفت. مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ہونٹ پہ رکھ لیا اور کہا مدار نیچے دیدی سادی شگوف، یہ جو تم نے دیکھا ہے سادی سے تعجب مت کرو کہ میں شیر پہ سوار ہوں، چیتے پہ سوار ہوں تو یہ کوئی بڑے عجوبے کی بات ہے. تو ہم گردن از حکم دعوت ہوتے کہ گردن لپیٹے سے حکم تو بھی اپنے رب کے حکم سے گردن نامو. کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم میں گردن نہیں موڑے گی، کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں موڑے گی. تو رب کا فرما بردار ہو جا، سب تیرے فرما بردار ہو جائیں گے. مچل کے بولی سبحان اللہ. پتا کیا چلا کہ ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ سے نہیں ڈرو گے ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرو. بولو ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف جب سینے میں نہیں ہوگا تو ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنا پایا جائے گا. اور ایک بات دیکھیں، خدا کا خوف سبحان اللہ اس کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. آج دیکھیے پوری دنیا میں قانون بنایا جاتا ہے نا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، مدبر اور فکری لوگ ہو، آپ یہ بتائیے کہ یہ قانون بنتا کیا؟ آپ بتائیں قانون کیوں بنتا ہے ملک میں؟ تاکہ ملک سے جرائم کا خاتمہ ہو. یہی ہے نا، قانون اس لیے بنتا ہے تاکہ جرم رک جائے، جرائم پہ پابندی ہونا. اسی لیے قانون بنتا ہے. روزانہ ایک نیا قانون نکل کے آتا ہے اسمبلی ہاؤس سے، قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور پھر وہ چیز نافذ بھی کی جاتی ہے. ہندوستان سے لے کر کے پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر میٹنگیں کی جاتی ہیں کہ دنیا سے فتنوں کو دور کیا جائے، دنیا سے برائیوں کو ختم کیا جائے، دنیا سے جھگڑوں کو مٹایا جائے، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے. مگر برائی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. قانون بنتے جا رہے ہیں، برائی بڑھتی جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ بڑے قانون اور بڑی بل پاس کیا جاتا ہے کہ جرم روکا جائے، اور خاص طور سے عورتوں کی
सुरक्षा की जाए, कन्याओं की आबरू की हिफाजत की जाए, कानून बनते हैं। मगर आप बड़ा रिपोर्ट उठा करके देखो, पूरी दुनिया का जब जायजा उठा करके देखोगे, एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में कहीं न कहीं किसी कन्या की आबरू को लूट लिया जाता है। क्या वजह है कि कानून बन रहा है मगर आबरू रेजी नहीं रुक रही है, जरायम नहीं रुक रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो जानते हो, कानून के बना देने से सिर्फ जुर्म का खात्मा नहीं होता है, कानून की बालादस्ती का कायम होना भी जरूरी होता है। कानून बनाया जाए, कानून का नाफिज होना भी जरूरी हो रहा है। मुजरिम को ये यकीन हो कि अगर हमने ये जुर्म किया तो हम कानून की सद में आ जाएंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे, हमें सजा दी जाएगी। लेकिन अगर मुजरिम को ये यकीन होगा कि जरायम करते रहो, कानून भी खरीदा जा सकता है, मुजरिम ये जानता है कि फैसले खरीदे जा सकते हैं, जजेस खरीदे जा सकते हैं, तो जहां इन फैसलों और जजेस का खरीदो फरोख्त होता हो, ऐसी जगह पर कभी जरायम का खात्मा नहीं हो सकता है। अगर जुर्म खत्म करना चाहते हो तो कानून के साथ साथ उस कानून की बालादस्ती भी कायम होना चाहिए। बोलो है कि नहीं? एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि जब तक कानून सामने होगा, जब तक कानून सामने होगा तब तक कानून से डरा जाएगा। कानून की पहुंच जहां तक होगी वहीं तक तो डर पाया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं मदरसा मखदूमिया से राजुल उलूम दादा मियां जाजमऊ में पढ़ाता हूं, करीब 200 बच्चे उस इदारे में पढ़ते हैं। मैंने सख्ती कर रखी है, कोई लड़का फालतू बाजार में घूमता नजर नहीं आएगा, कोई लड़का नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई लड़का दरसगाह नहीं छोड़ेगा, कोई लड़का किसी को गाली नहीं देगा, कोई लड़का किसी से लड़ाई नहीं करेगा, कोई लड़का किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने कानून बना दिया है, मदरसे में नाफिज कर दिया है, लेकिन मेरी नजर जहां तक है बच्चे वहीं तक जुर्म से रुक रहे हैं। जहां मेरी नजर नहीं पहुंच रही है उसके बाद वो बच्चा हर गुनाह करता नजर आता है। रात का सन्नाटा होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, बच्चे का दिल जागता है जुर्म करने के लिए, और वो हर जुर्म करता है जिससे रोका जाता है। काश कोई ऐसा कानून मदरसे में नाफिज कर दिया जाता कि जहां इस कानून का राज दिन के उजाले में भी पाया जाता और रात के अंधेरे में भी पाया जाता, ताकि ये बच्चा दिन के उजाले में भी गुनाह न करता और रात के अंधेरे में भी गुनाह न करता। तो कौन सा कानून है, कौन सी चीज है? तो याद रखो, वो कानून है खौफ खुदाबंदी का, इंसान के दिल में पैदा करने वाले का खौफ और वो यकीन रखे कि अगर हम दिन के उजाले में गुनाह करेंगे तब भी हमारा रब देख रहा है, और रात के अंधेरे में करेंगे तब भी हमारा रब देख रहा है। तो जब वो इस यकीन को और इस खौफ को सीने के अंदर रखेगा तो कहीं भी होगा वो गुनाहों से दूर होता चला जाएगा और नेकियों के करीब होता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। और एक चीज, आज हमारा मुआशरा बहुत बिगड़ गया है, बोलिए है कि नहीं? अरे कौन सा सिस्टम नहीं हमारी कौम में जारी है। नारा हम बहुत बढ़िया लगाते हैं, हमें जितने पीर उतना नारा, जितनी खानकाह उतना नारा, जितने मौलाना उतना नारा। कौम का हाल तो यह है कि नारे पे नारा, नारा समझ ही नहीं रहे नारा है क्या। आज तुम्हारा तारुफ दुनिया के सामने जो सुन्नी नहीं है वो इस शक्ल में कराते हैं कि सुन्नी एक नाराबाज कौम को कहते हैं जिनके यहां नारा तो पाया जाता है, अमल नहीं पाया जाता है। बोलो है कि नहीं? तुम्हारा तारुफ इस तरह से कराया जाता है, ये कितने शर्म की बात है। नारे लगाए जाते हैं, नारा लगाना बुरा नहीं है, मगर काश तुम्हारी जबान के नारे से ज्यादा तुम्हारा किरदार नारा हो जाता, तुम्हारा अमल नारा हो जाता, तुम्हारा चलना फिरना नारा हो जाता, तुम्हारा उठना बैठना नारा हो जाता। कौन कहता है कि नारा मत लगाओ?
उन्होंने नारा लगाया मगर अमल पैदा हो करके। आज हम नारा लगाते हैं, अमल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिद वीरान पड़ी है, हमें देखते हैं अजान हो रही है, घर में टीवी चल रही है, न हमारी बहन बेटियों को फिक्र है, न हमारे इन बूढ़ों को फिक्र है, न हमारे बच्चों को फिक्र है, न नौजवानों को फिक्र है। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी है और तुम्हें फिक्र नहीं है। जब से में नारे लगाते हो और ये समझ रहे हो कि नमाज छोड़ करके और नारा लगा के हम कामयाब हो जाएंगे। याद रखो, पहले मस्जिद के नमाजी बनो, उसके बाद कैसे कि तुम नारे पार करो। नमाजी बन करके अगर नारा लगाओगे तो तुम्हारा हाल ये था कि जब तुम नमाजी भी थे और नारा भी लगाते थे और नमाजी ऐसे थे कि आगे आए लड़ाई में अगर मरते नमाज सिग्नलों होते समी बोझ हुई कौमें हेदाद और एक ही सच में खड़े हो गए महमूद आयाद। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। जब तुमने इस अंदाज में नारा लगाया था तो कैसरो किसरा टहल जाता था जिंदाबाद से। ऐसी ताकत थी मुसलमान के नारे तकबीर में। तुम्हारे नारे से कैसरो किसरा की दीवारें हिल जाती थी। आज तुम नारा लगाते हो, पर्दा नहीं हिलता। बोलो है कि नहीं? मदरसा, ये मदरसा आपकी बस्ती में है, लेकिन आज जब मैं आया हूं मैंने इमारत देखी, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ऐसी इमारत सबको अता फरमाए। नजर में बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैंने ये देखा कि इस मदरसे में कोई मुदर्रिस नहीं है और कोई बच्चे पढ़ने वाले नहीं है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। हजरत अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब ने कहा मकान बड़ा अच्छा है। हम कहते हैं अज़ीज़ुल क़द्र, मकान अच्छा होने से काम नहीं बनता है। मकान वही अच्छा होता है जो आबाद होता है। अगर छप्पर हो, आबाद हो तो वो अच्छा है, महल हो बर्बाद हो तो अच्छा नहीं होता है। आज एक फकीर की कुटिया आबाद है, अर्शे आला के फरिश्ते भी उसका तवाफ करते हैं। बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े अमीरों के महल सोने पड़े हैं। बताओ वो फकीर की कुटिया अच्छी है या उस नवाब का महल अच्छा है जहां कुत्ते भूलते हैं। मकान की जीनत मकान मकीन से होती है। मकान आबाद रखो, अपना घर खाली कर दोगे तो शैतानों का अड्डा बन जाएगा। इसीलिए कहा गया घर को खाली न करो। अनेक जब तुम अपना घर खाली नहीं देखना चाहते हो, बाहर जाते हो तो पड़ोसी को बोल के जाते हो जरा घर को देखभाल करते रहना। चाबी देके बगल वाले को जाते हो कि घर में अंधेरा न रहे, चराग जला देना। अरे किसी कैसी खैर से तुम्हारी मुसलमान हो कि अपने घर को अंधेरे में देखना पसंद नहीं करते, अपने घर को तुम बंद होता नहीं देखना चाहते, तो तुम्हारी खैरत कैसी चल हो गई कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के घर को बंद देख रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल के घर को तारीख देख रहे हो। अरे अपना घर तारीख हो तो हो जाए, मगर याद भी करो कि हम अल्लाह और उसके रसूल के घर को कभी तारीख नहीं होने। और इस घर में तो अल्लाह का शुक्र है, इस मोहल्ले में, इस गांव में बड़े बड़े सेठ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले पाए जाते हैं। हजरत उमर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में बैठे हो। अरे इन्होंने तो अपनी कंपनी बनवा दी इस्लाम के लिए। तुम्हारा बच्चे आकर के पढ़ेंगे, तुम इतना नहीं कर सकते हो कि एक अच्छे आदमी का इंतजाम कर सको। यकीन रखो मेरे भाइयों, आज मैं तुम्हें नुस्खा देता हूं अमीर बनने। मजा के बोले सुभान अल्लाह। अमीर बनना चाहते हो ना, कैसे बनोगे अमीर? हम बताते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं मौलवी होकर के 50-60 हजार रुपया महीना कमाता हूं। अल्लाह का फजल करम है। और अल्लाह करे हमारी जमात के जितने भी लोग हैं अल्लाह सबको दौलत अता फरमाए। मौलवी को दौलत को देख के हसद होने लगता है, चाहते हैं कि मौलवी बस 150 रुपए में जूझता रहे। क्यों? हमें तुम्हारी कौम का इमाम है, भूखा मरे। दुनिया की कौमों का हाल ये है जो अपने पेशवा को सर पर बैठा के रखना चाहते हैं। एक आप हो कि मस्जिद के इमाम को चाहते हो 500 रुपए में काम चल जाए। 500 रुपया आप अपने बच्चे के स्कूल की ट्यूशन की फीस नहीं दे पाए, देते हो तो कहते होता नहीं, मास्टर तैयार नहीं।
तुम्हारा निकाह पढ़ाए, तुम्हारे में से कोई मर जाए, जनाजा पढ़ाए, कब्र तक पहुंचाए, फातिहा कर करके जन्नत पहुंचा। 500 रुपया। अल्लाह सबको तरक्की दे, इनकी खिदमत करो। और लेकिन बिजली याद रखो, आज मैं इतना कमा रहा हूँ, मौला रज़ाउल्लाह साहब गवाह है, जिस वक्त मेरे पास आए थे उस वक्त मैं 800 रुपया महीना पाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी खुशहाल था, आज भी खुशहाल हो। अमीर बनने का मैं नुस्खा तुम्हें देता हूँ। जब मैं 800 रुपया पाता था, मदरसे की दुनिया में रहता था, मैं देखता था कौन सा बच्चा गरीब है, कौन सा ऐसा है जिसके माँ बाप उसको खर्चा नहीं दे सकते हैं। मेरी औकात ज्यादा नहीं थी, 10, 20 और 2-1 रुपया ही से मैं उसकी खिदमत दे करके दुआ ले लेता था, उसकी खिदमत दे लेकर के दुआ लेने रहता था। आज भी जिस लायक हो मदरसे में मैं तलाश करता हूँ कौन सा बच्चा इस लायक है। ये मेरे बच्चे शागिर्द मेरे 3 इस वक्त मौजूद है जो मेरे पास पढ़ते हैं, इनसे पूछ लो, मैं तलाश करता रहता हूँ कि कौन सा बच्चा ऐसा है, और अपनी काजी कमाई से मैं उस बच्चे की मदद करता रहता हूँ। और अल्लाह वादा है तुम्हें तुम्हें 10 दे दिया जाएगा, तुम्हें पनाह दे दिया जाएगा। अल्लाह उसके बदले में से पनाह अता फरमाता है। हम कहते अमीर बनना चाहते हो तो दौलत को तिजोरी में बंद करके रखने से अमीर नहीं बनोगे, दौलत को बैंक बैलेंस करके तुम अमीर नहीं बनोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेने से तुम अमीर ना बनोगे। तुम ये तहैया कर लो कि हम 30 दिन कमाएंगे, 29 दिन की कमाई हम अपने बच्चों के लिए रखेंगे, 1 दिन की कमाई हम मस्जिद और मदरसे के लिए दे देंगे। हमें ऐसी बरकत होगी कि संभाल नहीं पाओगे। तो तहैया करो कि महीने में 30 दिन, 1 दिन की कमाई मस्जिद और मदरसे के नाम। सुभान अल्लाह। देखते हैं कैसे तरक्की नहीं होती है। कब तक गैरों के हाथ में रहोगे। नेताजी हमें एक कमरा बनवा दे, मंत्री जी हमें एक कमरा बनवा दे, अरे किसी को मदरसे की 4 दीवारी में घुसने ना दो। ये क्या है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, और जहाँ कुरान पढ़ाया जाएगा हम गरीब मुसलमान मेहनत और मजदूरी पर पैसा लगा करके कटाई में बैठा के पढ़ा देंगे, मगर किसी गैर मुस्लिम का हम पैसा नहीं देंगे। उठो फिर दस्ते हमें इच्छा कर दो पर बड़े बाती, मिटा दो शोर तारीकी की हम ईमान वाले, मिटा दो शोर तारीकी कि हम ईमान वाले हैं, सवारे हैं हम ही ने नए नए हालात के गेसू, हम ही ने वक्त के दिल में चूहे कांटे निकाले हैं। अच्छा सुनना चाहते हैं आप लोग? मजा के बोल दो सुभान अल्लाह, और नहीं बोलिएगा तो मैं बंद कर दूं। सही बताओगे? आप सुनना चाहते हो तो बोलो, वरना 2 बज गया है, 2 बज गया है। सुनना चाहते हैं? अच्छा कितने लोग सोना चाहते हैं? हाथ उठा। माशाअल्लाह, सोना भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा है। अच्छा कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा दें। सुभान अल्लाह, सब सुनना चाहते हैं। ये अल्लाह इन उठे हुए हाथों की तू लाज रख ले, इन्होंने जो आज़म किया, हौसला किया, ये अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमा। हम कहते हैं मेरे भाइयों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना करो। तुम्हारी जिंदगी जैसे गुजरनी थी वो तो गुजर गई, तुमने बचपने से जवानी में कदम रख दिया है, जवानी से बुढ़ापे में कदम रख दोगे, लेकिन तुम्हारा वो बच्चा जो अभी एक पंखड़ी की शक्ल में है, एक ताजा कली की तरह से है, अभी वो पूरी तरह से खिला ही नहीं है, उसने मौसम के सर्दो गर्म का अभी उसने मिजाज भी नहीं चखा है। आने वाला दौर बड़ा भयानक दौर होगा, तो उस बच्चे के हाथ में इल्म की तलवार दे दो, इल्म का कलम पकड़ा दो, ताकि वो बच्चा इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में अगर कहीं खड़ा हो तो कोई ये ना कहे ये मुसलमान हमसे कुछ नहीं आता है, बल्कि वो कहते मुसलमान है, और मुसलमान दुनिया का गुलाम नहीं बल्कि दुनिया का इमाम हुआ करता है। इसे आगे बढ़ा दो।
इसलिए कि इसके पास जेवरे इल्म है, हथियारे इल्म है। अगर इसे खुद से आगे नहीं बढ़ाओगे कि ये जबरदस्ती आगे बढ़ करके अपना मकाम हासिल कर लेगा। सुभान अल्लाह। जरूरी है कि आप अपने बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का रास्ता करो। ये नहीं कि सिर्फ हाफिज जी बना दो, मौलाना साहब बना दो। ये बहुत अच्छी तालीम है, लेकिन आज मदारिस का रुझान बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं हालात, इस्लाम एक आफाकी मज़हब है और इल्म दीन ये एक आफाकी इल्म है, और आफाकी उसी को कहते हैं जो हर दौर के तकाजे को पूरा करे। आज के दौर में अक्सर मदारिस में इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इन तमाम चीजों को दाखिल कर दिया गया है। इसलिए हमने ये मिजाज बनाया है मदारिस के जो जिम्मेदार लोग हैं और जिनके पास असबाब है, भाई असबाब की भी बहुत जरूरत पड़ती है। जिनके पास असबाब ही नहीं, हजरत अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब इतना बड़ा मदरसा गुजवर में चलाते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। 2-2, 4-4 रुपया कहाँ से इकट्ठा किया जाए, कुछ काम हो, बच्चों का खुराक हो जाए, बच्चों की किताबें आ जाए। और जाहिर सी बात है अगर इन्हें कंप्यूटर लगाना मदरसे में तो परेशान हो गए, लेकिन अगर कौम का ताउन शामिल हो जाए, एक कंप्यूटर की क्या बात है, सैकड़ों कंप्यूटर लग सकते हैं और सैकड़ों कंप्यूटर, और अगर कंप्यूटर लगेंगे तो आप ही तो बच्चों से तालीम हासिल करके निकलेंगे। लेकिन जिन मदरसों के पास आज सहूलत है, बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने ये चीजें भी दाखिल कर दी है ताकि हमारा बच्चा मदरसे की दुनिया से निकलने के बाद अगर कुरान से अरबी में सुनाना हो और किसी अंग्रेज को समझाना हो तो वो किसी अंग्रेजी भाषा को समझना हो, अरबी में समझाता चला जाए, अंग्रेजी में कुरान समझाता चला जाए, लोगों को बताता चला जाए। मौलवी समझते हो हमें देखो हमारे पास सारी तालीम मौजूद है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ इस चीज के जरिए से, तो आप बातें मैं कुछ और कहना चाहता था, बात बहुत दूर चली गई। तो हमारी कौम का हाल ये है कि हम कुछ करते नहीं, नारे बहुत लगाते हैं, और हमारी कौम का मिजाज एक और है। वो क्या है कि हम लिहाज में बड़ा अच्छा भी काम करते हैं और बुरा भी काम करते हैं। बोलिए होता है। एक साहब के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बड़ा मुस्कुरा के निकले। किसी ने रास्ते में पूछा भैया कहाँ जा रहा? बोले जा रहा हूं जरा नाच गाने वाले को बुला लेंगे। कहा हुआ बेटवा हुआ का बेटा पैदा होने पे नाच कराया जाता है? क्या करेंगे यार, मोहल्ले वाले बड़ा ताना देंगे। बोलिए करवा दो। दादा ऐठे ऐठे चल रहे हैं। कहा हुआ पोता हुआ, अब पोती हुई तो मालूम हुआ दादा आगे कब्र में पहुंच गए। बोलो तसव्वुर है कि नहीं? बेटे की शादी है तो पूछो नहीं। बूढ़ो इतनी जबरदस्त क्रीम लगा के निकलता है कि दुनिया देखे कि बेटवा वाला जा रहा है। अरे लोग कहा करेंगे दाढ़ी तेरी बढ़ गई, खिलाया नहीं खिलाया नहीं, अरे बेटा वाला है। तो दूसरों के डर में, समाज के खौफ से बड़ी बड़ी बुराइयां लगाता है। बोलो है तो समाज के डर से आदमी बड़ी बड़ी नेकियां भी करता है। अल्लाह भाई नेकियां भी करता है, बुराई ही नहीं नेकियां भी करता है। मौलाना साहब आ गए आमिरपुर में, आपके पास पहुंच गए, कहने लगे भाई ऐसा है कि मदरसे के नाम पे कुछ जरूरत है, आप दे दीजिए। आपने खुलूस से निकाल करके जो आपके पास था आपने दे दिया। आपके बगल में एक साहब थे जो कभी 1 रुपया नहीं देते थे, बहुत बड़े सेठ मगर देते नहीं थे। दिल का सेठ होना चाहिए यार। मुंबई में एक सेठ मरे लगा, मौलवी साहब पहुंचे, कहने लगे अबे जिंदगी भर तो कुछ नहीं दिया है, अब तो मर रहा, अब तो कुछ दे दे। कहने लगा मौलवी साहब जान तो दे ही रहे और क्या दे दे। मतलब रुपया नहीं देंगे, जान दे देंगे। लेकिन उसने भी देखा जो कभी नहीं देखता देता था, वो भी जेब में हाथ डाला और निकाल के मौलाना साहब के हाथ में रख। अदा भाई करे थे पकड़ लिया था, अबे तू तो कभी नहीं देता था, आज कैसे दे दिया? कहा सबके सामने ना देता तो बेइज्जती हो जाती, ना देता अकेले मांग के दिखा, अकेले मांगो कभी ना देंगे। मुंबई में सेठों के यहाँ चलना ले पहुंच जाओ, सेठवा दुकाने पे बैठा रहता, सेठ साहब है, कहा नहीं ये फला दिन मिले, सेठ ही बोलता है सेठ नहीं।
से झेल रहे हैं, बहुत से झेलते हैं, समझते ही लेने आए हैं, मांगने आ गए। इनका एहसान है जो तुम्हारी मैल इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारी मैल इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ लोगों का बहार ये था, अरे मौलाना सब जगह जान पहचान है, जैसे हमारी जान पहचान है किसी से, और नहीं देना चाहता है तो क्या होगा? मौलाना साहब, अरे कहाँ हजरत आप इतना जल्दी आ गए, हम तो आखिर महीने निकालते हैं। अभी बेचारे चले यार, आखिर महीने में आएंगे, इसके पास 100, 200, 500 जो भी है, कब से कब कुछ तो आ जाएगा। आखिर महीने पहुंचे, ए हजरत आपका ही इतना लेट करके हमने तो शुरू में निकाल दिया। बोलो होता है कि नहीं होता? इस तरह से एक अजीब मिजाज बना है, तो देना नहीं चाहते। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी कौम समाज के डर से अच्छा काम भी करती है और बुरा काम भी करती है। काश इस कौम के शहर में बात आ जाती कि वो समाज के डर से कोई काम ही नहीं करती। अगर वो करता तो सिर्फ अल्लाह के डर से करता, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए करता। तो छोटा करता तब भी कबूल होता और बड़ा करता तब भी कबूल होता। बोले होता कि नहीं होता, उसका हर काम कबूल किया जाता। और अल्लाह ने यही फरमाया है, फला तखशौना तबख्शौना, ये लोगों से न डरो, मुझसे डरो। अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया, फला तखाफून व खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, उन लोगों से न डरो, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। अगर ईमान वाले हो, तुम्हारे ईमान हो वाले होने की पहचान ये है कि तुम दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से डरोगे। और जब दिल में अल्लाह का खौफ होगा, बता के बोलो सुभान अल्लाह। चंद बातें ऐसे बताते हमारे तो आयत की क्या कहते हैं, अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा तकवा और खौफ पर कि अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो। अल्लाह से डरने वाले का बड़ा मकाम होता है। मुख्तलिफ जगह अल्लाह ने तालीम फरमाई, डरो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। सरकार वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हदीस जिब्रील में, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह एहसान, एहसान क्या? आदमी के अंदर खुलूस कैसे पैदा हो, इबादत में इखलास कैसे आए, खुशू खुशू कैसे आए? तो सरकार वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबुदुल्लाह कअन्नका तराह, तो अल्लाह की इस तरह से इबादत कर कि गोया तो खुदा को देख रहा है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। खुदा को देख रहा है, बड़ी नम तकुल तराह बड़ी नहीं रहा। अगर तू उसे नहीं देख सकता तो इतना यकीन रख कि वो तुझे देख रहा है, वो तुझे देख रहा है। तो अब इस यकीन से आप कहीं भी रहो तो आपके काम में खुलूस पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने और एक जगह फरमाया, फम्मा मन तवा व आखिर हयात दुनिया फइनल जहीम हिय अल-मौत। आज कुछ लोगों ने ठेकेदारी समझ लिया है ना? संदर्भ ये समझ लिए है कि जन्नत तो हमारे बाप की है। पीर साहब का बेटवा है, चाहे जितना बीड़ी पीता घूमे, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, चार अंगूठी चढ़ाए चले, कहा कहता जन्नत तो हमारी है। चाहे अब्बा बख्शवा लेंगे, अच्छा तोरे अब्बा बख्शवा लेंगे, कहा अब्बा पीर साहब है। ऐसे ऐसे पीरों से भी तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी शायर ने दौरे हाजिर की नकली पीरों के बारे में लफ्ज़ औलिया इस्तेमाल करते हुए का खुदा महफूज रखे हर भला से, खुसूसन हाथ करते करते फिरते इन औलिया से। इनका हाल भी अजीब है। एक पीर साहब का हाल ऐसा था जो कभी मतलब उनके मुरीद ने उनकी फजीलत बयान करते हुए कहा, पीर साहब का वजूद नहीं टूटता, किसी ने कहा कैसे का बनाते नहीं तो टूटेगा कैसे? ऐसा पीर बख्शवाएगा। पीर साहब गांव में पहुंच गए, तकरीर कर दिए मुरीदों के सामने, ऐसा है पुल से रात से गुजरना है। पुल से रात क्या है? बाल से ज्यादा बाल, तलवार से ज्यादा तेज, उस पे से चल रहा है। मुरीद बेचारे गैर पढ़े लिखे सुन्नी सीधे साधे मुसलमान थे। उन्होंने कहा पीर साहब तो उस पर से गुजरेंगे कैसे? क्या घबराओ ना, हम है ना, हम है ना, हम सबको पार कर देंगे। अच्छा तब तो बड़ी ठीक बात है, बड़ा लंबा थोड़ा नजराना दे दिया पीर साहब को, बड़े काम के पीर साहब है, बड़े पतले रास्ते में गुजार देंगे। दूसरे साल फिर पीर साहब आ गए, खेती बाड़ी होती थी, लेकिन सुबह सुबह मुरीदीन टहला के निकल पड़े, कहने चलो पीर साहब खेतवा तो देखा होगा, खेतवा में भी चल के धुआ हुआ करते। पीर साहब जब पौधा में लगे होते तो बकरियों पे धुआ करवा ली जाती,
कहने लगे चलो खेत देख लो। खेत पे गए, मोटी सी मेड़ थी, मेड़ ही बोलते हैं ना जो होती है, मोटी सी मेड़ थी, उस पर घास उगी थी और शबनम गिरी थी। पीर साहब चल रहे थे, फिसल गए नीचे के ऊपर, सारे मुरीद भाग कर कहने लगे हमें इतनी मोटी मेड़ पर से खुले नहीं चल पा रहे, कुछ राह से हमारे लोग कैसे नहीं कर जाएगा। अरे अब देखो जरा, तो कुछ लोगों ने यह समझ लिया जन्नत हमारे बाप की है। मैं कहता हूं बंदे सुनी करके नफरत कौन जानी कि तेरी राह होना इब्ने होना की देनी। और याद रखो जिसने नूह बाबा नसीब खानदाने नबूवत छोड़ सके सहाबे कहते चंद पाए नेका गिरफ्त मासूम छोड़। जन्नत किसी के पास में ठेकेदारी नहीं है। अगर अच्छे बाप अच्छे किरदार पैदा रहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर किरदार पूरा होगा तो चाहे जिसके बेटे हो जहन्नम की वादियों में ठगे। अल्लाह फरमाता है लेकिन वो जिसने सरकशी की वहां सरल हयात दुनिया और उसने दुनियावी जिंदगी को चुना तो बेशक जहन्नम उसका ठिकाना है। वह खासा मकाम रखती। लेकिन वो शख्स जो डरा अपने रब के हुजूर खड़ा होने से कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह हमसे इसके बारे में सवाल करेगा। जानते हो नहीं जानते? अल्लाह पूछेगा, अरे भाई सब जानते हो ना मरना है, मरने के बाद कहां जाना है? कब्रिस्तान। हश्र में जाओगे तो अब पूछेगा बंदे मैंने तुझे हाथ दी, कान दी, नाक दवा सारी नेमतें दी, तूने क्या किया? होगा फर्क तू जिन्ना वे दिन से हिला गया बोलो तूने क्या किया? अया सबुल इंसान को यूं ना कर बोला क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुमसे एक एक लम्हे का हिसाब किया जाएगा। रब तुमसे पूछेगा तुमने क्या किया दुनिया में। मुसलमानों यकीन रखो ये होना है, तसव्वुर करो अल्लाह मैदान महशर कायम है, अल्लाह तुमसे पूछ रहा है तो तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी आएगी कि नहीं आएगी? अभी वक्त है, मौत का फरिश्ता नहीं आया है और बाबा का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ है। महशर की शर्मिंदगी से पहले जो तुम्हें जिंदगी मिली है इसे गनीमत समझ करके सच्चे दिल से तौबा करो और आइंदा की जिंदगी अच्छे अमल में गुजारना शुरू करो ताकि हमेशा की शर्मिंदगी से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। क्योंकि जो वो शख्स जो डरा अपने रब के हुजूर खड़ा होने से और उसने अपने नफ्स को बुराइयों से रोका, फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। जन्नत उसका ठिकाना पता क्या चला कि जन्नत मुत्तकीन का ठिकाना है। और आका अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं मुख्तलिफ जगह पर कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। ये ईमान वालो अल्लाह से डरो और चाहिए कि गौर करे हर जान हर नफ्स कि उसने कल के लिए क्या तैयार क्या उसने भेजा है। कहीं अल्लाह ने फरमाया इंसान को मुखातब करते हुए या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने तेरे कर्म करने वाले रब से काफिल कर दिया है। अल्लाज़ी खलक़का फक़द्दरका फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया। अल्लाह ने इस तरह तंबीह करने की कोशिश की बंदे को और नतीजे के तौर पर अल्लाह ने बयान फरमा दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया है, सुना चाहते हैं मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे फरमाया सूरह तलाक में वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए निजात की राह निकाल देता है। अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल देता है। वो यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे वो वहां से रिज़्क़ पहुंचाता है जहां वो सोच भी नहीं सकता है, जहां वो सोच भी नहीं सकता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी होता है। अल्लाह उसके लिए काफी होता है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल समझो ताकि पूरी तरह से आयत समझ में आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हज़रत औफ इब्न मालिक पहुंचते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जवान बेटे को मुशरिकीन ने कैद कर लिया है, घर में बड़ी बेचैनी और बेकरारी पाई जा रही है। अय अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को मुशरिकों ने कैद कर लिया, अपनी तहवील में रख लिया है, मेरे बेटे को जान से मार देंगे। या रसूल अल्लाह हम क्या करें? आप जरा और देखो कल के मुसलमान सहाबा को जब कोई तकलीफ होती थी तो वो रसूलुल्लाह की बारगाह में आते थे
नाले के आसपास पे नहीं जाना चाहिए, किसी नबी और वली से नहीं मांगना चाहिए। मैं कहता हूँ उस दौर के सहाबी अच्छे थे, ये इस दौर में वहाबी अच्छे हैं। सहाबी का हाल ये था, कोई परेशानी होती थी तो रसूलुल्लाह की बारगाह में आते थे। उनका ये अमल बताता है कि ये मुख्तारे कायनात है, ये जो चाहेंगे वो हो जाएगा। इनकी मर्जी खुदा की मर्जी होती है, इनकी चाहत खुदा की चाहत होती है। इनका हाल वो हाल है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सहाबा ये जानते थे, उनका ये यकीन बोलता था ना खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं हो वहां। सरकार की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह बेटा गुम हो गया। बोलो, हमें आप आलिमों के पास जाते हो, वलियों की चौखट पे जाते हो, दुआ करते हो अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर कर दे। बोले होता कि नहीं? ये सुन्नियों का दस्तूर है। मतलब के बोले सुभान अल्लाह। कभी गुंजाइश नहीं करना, इन तमाम चीजों को मैं बता देता दलाइल के साथ, लेकिन जिस आयत को जिस उन्वान को मैंने उठा उसी पे मैं अपनी गुफ्तगू इस्लाही एतबार से खत्म करना चाहता हूँ। आओ जरा देखो, हज़रत औफ अपने मालिक पहुंचे और कहते या रसूलल्लाह मेरे बेटों को मुशरिकों ने कैद कर लिया है। अब कैद से रिहाई तो चाह रहे थे, क्या चाहते थे? बेटा आजाद हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया ये मेरे जाने साथ सब्र कर। क्या कहा? सब्र कर, परेशान ना हो, घर चला जा, एक वजीफा बता देता हूं, पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, तेरा बेटा आ जाएगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह, तेरा बेटा आ जाएगा। ताजा घर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की कसरत से विर्द करना। वो घर आए, बीवी ने पूछा क्या हुआ? सरकार की बारगाह में गए थे। कहा सरकार को मैंने परेशानी बताई, सरकार ने सब्र की तालीम जो कहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम घर में पढ़ते रहना, तेरा बेटा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोल रहे यार सुभान अल्लाह। हजारों फलसफियों की चुना चुनी बदली, नबी की बात बदलनी, नफी नहीं बदली। कहा जो दिन को की शब है तो दिन निकाल आया, कहा जो दिन को की शब है तो रात होते रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होते रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होते रही। दरवाजा बंद कर लिया मियां बीवी ने, कसरत से यही विर्द करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि जमीन और आसमान का निजाम बदल जाए मगर मुस्तफा की बात नहीं बदल सकती है। वही जानते थे कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकले, पश्चिम से निकल के पूरब में तो ढूंढ सकता, मगर मुस्तफा की बात नहीं बदल सकती है। दोनों मियां बीवी पढ़ने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कोई हद तो कुव्वत नहीं मगर अल्लाह अज़ीम की ये विर्द कर रहे हैं, ये विर्द कर। हमें थोड़ी देर हुई थी, अभी विर्द करते हुए थोड़ा सा वक्त गुजरा था, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, बादशाह दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है? जो हजारों मील दूरी पर बेटा मुशरिकों की कैद में था, वो दरवाजे पे खड़ा मुस्कुराता नजर आ रहा है, दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा है। बाप की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और कहने लगे बेटा कैसे क्या हुआ? तू इतनी दूर था, आजाद कैसे हो गया? तो जानते हो, बेटे ने कहा अब्बा जान मैं कैद में था, अचानक मैंने देखा कि काफिरों और मुशरिकों के ऊपर गफलत तारी हो गई, मैं उनकी कैद से भाग निकला और अब्बा जान भागा नहीं हो, जरा मेरे साथ आई, मेरे साथ है। उन्होंने दो बात की शिकायत, एक तो बेटा कैद में है, दूसरे या रसूलल्लाह बड़ी गरीबी है, बड़ी मुश्किल से वक्त करता है। क्या हाल सरकार का, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार ने न ला है न हाजत अगर की। दो बात के लिए उन्होंने कहा था, तो कहा अब्बा जान आइए गए, कहा अब्बा जान ये 4000 बकरियों का मेवर है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा बेटा ये कहां से लाए? कहा लाऊं रहा था मुशरिकों की कैद से, और ये 4000 बकरियां जगह तो काफिरों की चल रही थी, मैं सबको हटाता हुआ लेके चला आया। बाप ने क्या कहा? एक जुमला इस्लामी दे दूं, इजाजत है? सुनना चाहते हो? बदल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा अब्बा जान? 4000 बकरियां लाए। अब्बा ने क्या कहा? जल्दी आ जाओ, ये नहीं कहा
अम्मा का क्या हाल होता है, बेटवा बगल वाले के आम से गया एक आम तोड़ के लेके चला आया, अम्मा आम लाया, अम्मा की नीयत खराब, बेटा आ जाता है, कोई देखने ना पाए, बड़ा अच्छा किया है आम लेके आया है। अच्छा ठीक है, बचपन में आम चुरा के लाया तो बड़ा प्यार तुमने किया, तब किसी की गर्दन मार के आएगा तो तुम क्या करोगे? माशाअल्लाह, मैं सोचता हूँ कि अमियापुर से आम लेके जाऊंगा, लेकिन अभी शायद थके नहीं। हाफिज जुबैर साहब, आपके पास बगिया है ना? अल्लाह सलामत रखे हर बार वाले को, सुभान अल्लाह। और हमारे लिए तो कागजी बात है, यहाँ भी लहाद में इसमें रुपए शहर आग लेके चले, अंधेरी रात